Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my session. So before starting, I still have 1 minute to go and I'm just going to go on Facebook and check who's live with me. And in the meantime, those of you who are watching, do let me know where you are logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province of Pakistan? Or even from any other place as well. So just let me know in the comment box and I'll just go to Facebook and come back in a jiffy. Okay. So I can see myself live and now I'm just going to wait for a few of you to turn up so I can start. And I hope you might have read what the caption is about and what I plan to talk about today. So it's very, it's very obvious and you can easily grasp what I intend to talk about. Okay. Muhammad Bilal, Walaikum Assalam. I hope you're fine. And yesterday I got your messages, but I did not have the time to reply. So, was there something of urgency which you wanted to talk about, and that's why you were sending me the messages? Um, so, you can just let me know. Like, I have an upcoming short kind of exam, so due to that, I do not have time at the moment, but it will be it will finish by Sunday. So Friday, Saturday and Sunday, these 3 days, these are really busy. So I just I just thought about taking this live session today. So probably tomorrow I won't be taking the session, and then I'll resume the session again from Monday, inshallah. You'll be just hearing about me talking today, and not tomorrow. So those of you who are waiting for my messages, or you're expecting me to call you, or attend to your calls or messages, so I've just told you my reason that nowadays I'm studying for something, so I do not find time regarding that. And you know what, that's what I want to talk about today. It's about time. So अक्सर हम जो है okay, I'll just take your comments. Alisha, thank you so much for your compliment. And Hamza, why do you want me to add you? Okay, Mohammed Bilal, आप कह रहे हैं you don't understand English but you write very well English, so how can you not understand if you can write in English? फ़ाखरी आलम, you are asking what is the topic. फ़ाखरी आलम, आप तो मुझे लगता है कभी भी मेरी कोई भी पोस्ट नहीं पढ़ते. मैं तो पोस्ट में लिखती हूँ, जिसमें नहीं लिखती उसमें बता देती हूँ सेशन में कि भाई आज टॉपिक नहीं लिखा. आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट टाइम, अभी मैंने आपको बताया है. हमज़ा चौधरी, यस भाई जी. सिस्टर क्या करे, आप बताएं ना सिस्टर को क्या करे सिस्टर. अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज़ अबाउट टाइम. अब टाइम किस तरीके से मैं जो हूँ क्या चीज़ टाइम पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज़ हम अक्सर जो है कह रहे होते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये चीज़ करने का टाइम नहीं है, वो चीज़ करने का टाइम नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू एम्फसाइज अपॉन थिंग कि जो टाइम है ना वो बज़ाहिर खुद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप उस टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि आप जो है करेंगे तो आपको होगा कि भाई आज का जो दिन है वो बहुत मेरा प्रोडक्टिव गुजरा है, एंड आई हैव बीन एबल टू डू एवरीथिंग what I wanted to do in today's day, in every day. So टाइम को हम उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे किस तरह जो है वी कैन सेव टाइम एंड मेक द मोस्ट प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट. सो इसके साथ ही जो है आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. और टाइम के हवाले से आप लोग भी जो है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं and how you think you can make your days productive, you can keep on letting me know in the comment box and keep on pouring your suggestions here. अच्छा मोहम्मद बिलाल, जैसे आपके पास टाइम नहीं होता. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, देखिए मेरे पास अगर टाइम नहीं होता तो देयर आर रीजन, क्योंकि आई ट्राई कि मेरे जो 24 आवर्स है ना वो मोस्टली प्रोडक्टिव गुजरें. तो जहाँ पर like if I'm not going to focus on those things, so then I won't be live here in these sessions, and I won't be able to conduct these sessions the way I want to do. So अगर मैं उस तरीके से जो है टाइम निकालना शुरू कर दूँ, like I know still I waste 2-3 hours in my day. So I want to um,
मेक दोज 2-3 hours एज वेल प्रोडक्टिव. सो इस वजह से जो है ना एट टाइम्स जो है मुझे कहना पड़ता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एंड देन आई डोंट लाइक, वाकई में मेरे पास टाइम नहीं होता. अच्छा अलीशा, यू आर सेइंग मेरा ख्याल है टाइम का तो मैं टॉपिक लेकर पछता रही हूँ, क्योंकि द काइंड ऑफ कमेंट्स आई एम getting from you people. Alicia, you're saying, like you said, haven't time for replying to message, but you have best schedule and managing, that's the big achievement of success. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. मैं समझी कि शायद आप भी मुझे जो है ना मोहम्मद बिलाल की तरह रगड़ने लगी है कि भी आपके पास टाइम नहीं है. Yes, there are times when I do feel short of time, and बट येस, अगर आप अपने आप को जो है वेल मैनेज करके चल रहे हों और आप अपनी हर चीज़ प्लान करके चल रहे हों डिस्पाइट ऑफ जो ब्लंडर्स आप कर रहे होते हैं दिन में, तो उस लिहाज से जो है यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन बी प्रोडक्टिव एंड यू कैन बी सक्सेसफुल एज वेल. सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. इट्स रियली अ गुड कॉम्प्लीमेंट एंड इट रियली मोटिवेट्स मी. ज़मीर रुथानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. सो सबसे पहले तो देखें, जब टाइम की बात आती है ना और आपने अपने दिन को किस तरह प्रोडक्टिव बनाना है, यू नीड टू सेट क्लियर गोल्स. आपके जो भी गोल्स हैं ना दिन के, आप सुबह सुबह जो है ना, या जो रात का टाइम होता है ना, पिछली रात जो होती है, उसमें एक लिस्ट बना लिया करें. और फिर अर्ली मॉर्निंग, जिस तरह व्हेन आई एम व्लॉगिंग इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, तो मेरे जहन में जो है चीज़ें चल रही होती हैं कि व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू ड्यूरिंग द डे. सो मॉर्निंग में वो एक बहुत ही, आई वुड से, प्रेशियस टाइम होता है जिसमें जो है यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वरीज, और कोई टेंशन नहीं होती, कोई आपके जहन में चीज़ें सवार नहीं होती. जिस तरीके से मोस्टली लोगों के जहन में जो है, जब वो सुबह सवेरे उठते हैं एंड इफ़ दे डोंट गो फॉर वॉक्स और दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो उनके जहन में टेंशन होती हैं कि जी अभी नाश्ता बनाना है, अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी फलाने बच्चे के जो है एग्ज़ाम इतने बजे ख़त्म होगा, अब उसको पिक करना है, दूसरे का एग्ज़ाम इतने बजे ख़त्म होगा, उसको पिक करना है, दैन मैंने घर की जो है सफाइयाँ करनी है, हांडी रोटी करनी है, फिर बच्चों को पिक करना है. यू नो, देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड देयर इज़ सो मैनी मल्टीटास्किंग अ पर्सन इज़ डूइंग. नाउ इट अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ जेंडर्स पर ये अप्लाई होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं कहूँ कि ये जो है सिर्फ फीमेल्स ये काम कर रही होती हैं, मेन भी कर रहे होते हैं, वो अपने तरीके से कर रहे होती है. सो वी एग्जिस्ट टुगेदर एज अ होल, एज अ फैमिली. सो हर एक अपनी डायमेंशन में ना काम कर रहा होता है और उनके ज़िम्मे बहुत काम होते हैं. बट देन इन द मॉर्निंग आपका जो माइंड होता है वो बहुत फ्रेश होता है, और जब आप वॉक करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट दिस थिंग. सो सबसे पहले तो आप अपनी एक लिस्ट बना लें, और वो जो लिस्ट है उसमें क्लियर गोल्स हो. लाइक अगर आपकी लिस्ट में जो है ये चीज़ें हैं कि जी आज के दिन में मैंने जो आउटडोर चोर्स हैं वो सारे करने हैं, तो उन आउटडोर चोर्स में एवरीथिंग शुड बी क्लियर. लाइक अगर आपने जो है गार्डनिंग करनी है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो उस लिस्ट में हो. अच्छा, देन अगेन आपने अगर जो है शॉपिंग करनी है तो आपकी लिस्ट में जो है चीज़ें आइडेंटिफाइड हों. क्योंकि देखें, जब आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, येस अलीशा, योर राइट, टाइम इज़ द बेस्ट की टू सक्सेस. शाह फाहद अफरीदी, आई एम सो लेज़ी टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, दैट्स वाई. इट्स ओके, आप जब भी उठते हैं आप उस टाइम पे उठ के जो है ना अपना टाइम टेबल बना लिया करें, नो बिग डील. सो जो जल्दी उठ सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप वैसे भी एक डिसिप्लिनरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखें कि हमारे जितने एंसेस्टर्स की एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, तो एवरीवन यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उस टाइम पे जो है दे यूज्ड टू डू सो मैनी थिंग्स. मसलन फजर पढ़ते थे. देन मोस्ट ऑफ द फोर फादर्स वो जो है ज़्यादा एग्रेरियन लैंड के थे, या फार्मर्स थे, या कैन बी एनी वन, लैंडलॉर्ड्स भी हो सकते हैं. बट देन उनका जो सबसे पहले चीज़ होती थी, वो सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, अपने जो भी उनके लैंड्स होते थे उसमें जाते थे, उसका चक्कर लगाते थे. दे वुड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज ओवर देयर वॉक के थ्रू. सो ये है कि वो एक एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि, और फिर ये जो कोट बार बार हम सुनते हैं, अर्ली टू बेड मेक्स अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो ये कोट जो है उसी के साथ लिंक्ड है कि व्हेन यू डू थिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू गेट सो मच विजडम, और आपको हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहती है.
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो आप धूप ले रहे होती हैं आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। देन आप जो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो वॉक कर रहे हैं वो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरे दिन में अगर आपका जो है सिटिंग एनवायरनमेंट है या रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट है तो यू आर अनएबल टू सिम्पली गेट आउट ऑफ योर डेस्क एंड डू समथिंग। सो वो आपके जो पुर्जे होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं जब आप अर्ली मॉर्निंग में कुछ ना कुछ कर रहे होती हैं। सो जो क्लियर गोल्स हैं यू नीड टू मेक दोज क्लियर गोल्स, चाहे आपके वो शॉपिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपके होम चोर से रिलेटेड है, या चाहे वो आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या आपके कोई प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड है। सो द गोल्स दे हैव टू बी लिस्टेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एंड दे हैव टू बी वेरी क्लियर। कुछ गोल्स होंगे कि आप उनको एक दिन में नहीं वाइंड अप कर सकते, तो देन आप उनको डिवाइड कर लें। लाइक अगर गार्डनिंग की मैं बात करूं तो गार्डनिंग में जो है एक दिन में जो है आप जो है प्लांट्स ले आएँ, साथ में उसके एक्सेसरीज ले आएँ, फिर अगले दिन या 2-3 दिन छोड़ के जो है एज टाइम रिक्वायर्स या जो भी रिक्वायरमेंट है आपके प्लांटेशन की, यू कैन आस्क द माली टू कम एंड देन प्लांट इट। सो वो आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं, बट फर्स्टली यू नीड टू सेट क्लियर गोल्स। अच्छा सफ़िया सुल्ताना, इतनी अच्छी सजेशंस के लिए बहुत थैंक्स, यू मोस्ट वेलकम एनी टाइम। Thank you so much for joining and watching this session as well. Alicia, you are saying when I was in BCom, then I decided before 6 months I'm making list and schedule, then going days to hours, then month gone. So then at the exam time, my point is making schedule with implement the then we can take success. Yes, you are very much right for the simple reason कि अगर जो है इवन जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर एग्ज़ाम से पहले हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम अपना स्केड्यूल नहीं सेट करेंगे, अपना टाइम नहीं मैनेज करेंगे, तो देन वी आर गोइंग टू सफ़र। सो एग्ज़ाम से पहले तो स्केड्यूल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी जो है कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस होने वाले हैं बच्चों के, और दे हैव ऑलरेडी प्लान फॉर द टाइम स्केड्यूल। दो स्कूल में भी फोकस होता है कि भाई यू हैव टू मैनेज योर टाइम्स, बट ये है कि अगर टाइम टेबल आपका नहीं होगा तो वही बात है कि आपके एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में देर आर सो मैनी सब्जेक्ट और आप हर एक सब्जेक्ट को उस तरह घंटों में जो है नहीं कर सकते। यू हैव टू क्विकली स्क्रॉल थ्रू दैम। आपने जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, पॉइंट्स बनाए होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज कर रहे होते हैं। देन देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स, जिस तरह मैथ्स हो गए, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। अगर आपका टाइम टेबल होगा तो देन सक्सेस भी आपके कदम चूमेगी, और अगर आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम आपका गुजर जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगी कि भाई टाइम कहाँ गया और जो करना था वो किया ही नहीं। Rehan Riaz, thank you so much for joining and watching this session. You're joining for the first time, so welcome to my session. Okay, so पहली चीज़ तो होगी सेटिंग गोल्स की। अच्छा, फिर हम जो है आगे अगर मज़ीद चलते हैं तो आपने अपनी रूटीन क्रिएट करनी है। अब सेटिंग गोल्स तो आपने कर लिया, उसमें भी आपने लिस्ट कर लिया, और फिर अगेन आपकी एक रूटीन होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरह मदर्स होती हैं या हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी एक अपनी रूटीन होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी रूटीन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लाइक इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, तो आई वुड से आई एम पार्टली अ हाउस वाइफ एंड पार्टली अ प्रोफेशनल। सो आई ट्राई कि भाई सब चीज़ें जो है ना एक बैलेंस में चल रही हो। व्हेन आई एम डूइंग माई होम चोर्स तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द होम चोर्स, बट ये है कि व्हेन आई एम डूइंग माई प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड थिंग्स तो आई एम टोटली इंगेज इन टू दोज। फिर उसमें जो है फिर मैं ये चीज़ नहीं देखती कि घर का वो काम पड़ा हुआ है और वो मैंने करना है, क्योंकि देन आई नो कि दिस इज़ माई प्रो टाइम एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई प्रोफेशनल करियर एज वेल। सो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। बट देन इफ़ यू आर डूइंग अ 9 to 5 जॉब, फिर आपको उसके मुताबिक अपना जो सारा सिस्टम है वो डेवलप करना पड़ता है। सो आपको जो है अपनी रूटीन बनानी पड़ती है। जिस तरीके से आई वुड टेक द एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन, जिस तरह बच्चे छोटे होते हैं एंड एज पेरेंट्स यू नीड टू फिक्स देयर टाइम्स कि उनका जो है सोने का क्या टाइम है, उनका उठने का क्या टाइम है, उनके खाने का क्या टाइम है, एंड यू ग्रूम देम स्टेज बाय स्टेज अकॉर्डिंग टू द एजेस और एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अगर स्कूल्स हैं तो स्कूल की रिक्वायरमेंट और रूटीन्स अलग होते हैं। डेफिनेटली स्कूल में जब बच्चे यंग होते हैं तो यू विल ऑलवेज फोकस कि भाई वक्तों पे वो सोएं, वक्तों पे जाके, ताकि उनकी नींद और उनके हेल्थ सफ़र ना हो। बट देन अगेन एज दे ग्रूम एंड दे
गो टूवर्ड्स हायर क्लासेस, ओ लेवल्स में आते हैं, ए लेवल्स में आते हैं, फिर उनकी एक अपना टाइम स्केड्यूल होता है क्योंकि देन दे हैव टू स्टडी. सो आप उनको उस तरीके से बच्चों की तरह नहीं ट्रीट कर सकते. यू हैव टू सी कि भाई उनको क्या चीज़ सूट करती है. एंड एट टाइम्स दे माइट बी वेकिंग ड्यूरिंग द नाइट्स. एज पेरेंट्स आप हो सकते हैं जल्दी सो जाएं, बट बच्चों ने चूँकि अपने टाइम टेबल्स बनाए होते हैं, दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दोज टाइम टेबल्स. बट देन अगेन यू कैन ऑलवेज वेक अप एंड कीप चेकिंग कि भाई उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो नहीं. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स विच पेरेंट्स हैव टू टेक एंड दे हैव टू डू दैट. Alicia, you're saying otherwise our family needs our time, so we must give the time who deserves, like friend also need our time. That means making routine and schedule timing. Okay, schedule timing and routine, that's best. But then again जो आपके friends होते हैं, they need to understand your timetables and they need to understand your busy schedules. Now being a professional, I would always understand कि भाई मेरे husband के जो है timetables different है, उनके ऑफिस जो है जॉब डिफरेंट है, क्योंकि ऑफिस जॉब इज़ कंपैरेटिवली डिफरेंट दैन अ रिमोट वर्किंग जॉब. ऑफिस जॉब के तो टाइमिंग्स है 9 to 5 है, बट देन रिमोट वर्किंग में यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स, या आप जहाँ से जो है काम ले रही हैं. अगर आपके क्लाइंट्स जो है फॉरेन बेस्ड हैं, पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, तो देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल्स. जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है, तो फ्रेंड्स डू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पास टाइम नहीं है. और फ्रेंड्स इसीलिए फ्रेंड्स होते हैं कि दे आर नॉट जजमेंटल, दे नो यू इन एंड आउट, और तभी आपकी जो है फ्रेंडशिप्स चलती हैं. Rana Vileed, thank you so much for your compliment. So you have to create a routine in order to be successful as well. That's right. अच्छा, देन उसके बाद इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ प्रायोरिटाइजिंग टास्क. आपने लिस्ट तो बना ली, बट देन आप उस लिस्ट में देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच रिक्वायर मोर प्रायोरिटी. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ डे. मसलन आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में बिल्स पे करना है. नाउ पेइंग द बिल्स दे हैव टू बी प्रायोरिटी, क्योंकि जो बिल्स होते हैं, जो महकमे होते हैं, उनकी एक डेडलाइन होती है, आपने उन डेडलाइंस को मीट करना होता है. और अगर वो तारीख निकल गई तो फिर आपको जो है डबल द कॉस्ट पे करनी पड़ती है. सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज, टास्क भी प्रायोरिटाइज होते हैं. इट्स नॉट दैट कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप जो है प्रायोरिटी पे जो है चीज़ें सारों प्रायोरिटीज़ छोड़ के आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ कर रहे हो. यू हैव टू फोकस ऑन द प्रायोरिटीज़ एज वेल. जिस तरीके से फैमिली लाइफ होती है, फैमिली लाइफ में जो है अगेन आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं. फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है, बच्चे आपके प्रायोरिटी होते हैं, हस्बैंड आपकी प्रायोरिटी होते हैं. बट देन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि एक प्रायोरिटी होती है फिर सब प्रायोरिटी होती है, एंड दैट्स हाउ यू गो इन लाइफ. और इसी तरीके से एक आपका जो है ना म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है, व्हेन everyone is trying to accommodate everyone despite of whatever the differences are. So you have to prioritize task. अच्छा, अब इसमें जो है ना, यानी टाइम में जो है ना, आप देखेंगे कि अक्सर औक़ात जो है ना आपका सिस्टम जो है ना बहुत फ्लो के साथ जा रहा होता है, पर उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है. और वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो प्रॉब्लम ये होती है, यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड. लाइक देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, even when I was in university, we did not used to have these gadgets. Yes, gadgets थे बस जो है बताने के लिए, for emergency cases. अगर मोबाइल था तो वो सिर्फ बताने के लिए था कि ओके आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो गई है तो आई एम कमिंग बैक होम. सो सिर्फ वो इसलिए था. अब क्या है, अब देयर सो मच टेक्नोलॉजी, देयर सो मच डाइवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स. आपके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल पे जो है इंटरनेट भी है, ढेरों ढेर ऐप्स भी आपने डाउनलोड किए हुए हैं. एंड देन यू हैव लैपटॉप, लैपटॉप में भी 100 तरह की विंडोज़ आपने खोली हुई हैं. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप जो है कोई काम करने बैठते हैं तो यू आर ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड. सो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने गोल्स अपने सामने रखते हुए यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड. और डिस्ट्रैक्शन के लिए बेस्ट ये है कि आप अपना जो है, जिस तरह आप टास्क बना रहे हैं ना, तो उसमें आप अपना एक टाइम मुकर्रर कर लें. अगर इफ़ यू आर टेक सेवी पर्सन, या इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ पर्सन, तो आप अपना एक घंटा मुकर्रर कर लें कि ये इस घंटे में जो है ना मेरे जितनी सोशल एक्टिविटीज़ है मैंने वो करनी है. अब उसमें जितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं या जितने लोगों के साथ आपने जो है ऑन कॉल बात करनी है, चाहे अब वो आपके प्रोफेशनल हैं चाहे वो आपके पर्सनल हैं, तो आप उस घंटे में उन सबको निबेड़ लें. और फिर
उस घंटे के बाद अपना जो है, अगर पढ़ाई की तरफ आपका फोकस है या आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि पेंडिंग में है एंड यू हैव टू कवर दैट, तो आप एक्सक्लूसिवली फोकस अपना उसकी तरफ रखें। और फिर इन बिटवीन और जितने नोटिफिकेशंस हैं ना, उन सबको वाइब्रेशन पे लगा दें या म्यूट पे लगा दें। सो उसका नतीजा क्या होगा, वो बजते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, पर आप पे जो है ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि दिल बी म्यूटेड एंड दिल बी ऑन वाइब्रेशन। सो आप जिस वक्त फारिग होते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना मोबाइल उठाएं, देखें किसकी नोटिफिकेशंस आई हैं। जाहिर है सांस भी तो लेना है ना, अब ये तो नहीं ना पढ़ के या काम कर के वैसे ही आप ख़त्म हो जाएं। तो थोड़े आपको रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो इवन अगर रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट है तो थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद उठें, अपने आप को स्ट्रेच करें, पानी पिएं, थोड़ा घूम फिर के आएँ, नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ें, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करें। तो बैठ के जो है, जब आप अपने टास्क कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन, जिस तरह मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन हो गई, नोटिफिकेशन की डिस्ट्रैक्शन हो गई, उन डिस्ट्रैक्शंस को तो आपने साइड पे करना है, बट एट द सेम टाइम आपने अपनी हेल्थ भी देखनी है। एक की जगह बैठ के स्टैचू नहीं बन जाना, उधर से उठना है, अपने हाथ पाँव चलाने हैं, क्योंकि किसी ने आकर एट द एंड ऑफ द डे किसी ने आकर आपको उठाकर नहीं लेकर जाना, आपने खुद ही अपने वज़न पे उठना है, अपने हाथ पाँव खुद ही जो है चलाने हैं। सो अगर वो वर्किंग ऑर्डर में होंगे तो आप चल के अपने बिस्तर तक जाएंगे, अदरवाइज जो है आपसे उठा भी नहीं जाएगा। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और ये भी टास्क को प्रायोरिटाइजेशन में आता है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस तो आपने डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस का कोई इलाज करना है, वरना जो है ना, आप देखेंगे कि भाई जिस तरह सोशल मीडिया हो गया ना, सोशल मीडिया भी आपका जो है ना, इट सक्स योर ब्लड। इसके अलावा जो लोग हैं, देन देयर आर सर्टेन पीपल, वो भी आपके जो है ना चूस लेते हैं, टाइम चूस लेते हैं, कि आप जो है ना कहते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एंड रियली यू रियली मीन इट कि टाइम नहीं है। लाइक एट टाइम्स आई कीप ऑन टेलिंग पीपल कि भाई आई डोंट हैव टाइम ना, आई एम वर्किंग, और फिर भी जो है लोग जो है तंग करते रहते हैं कि जी आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। सीरियसली मेरे पास तो अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं निकलता, तो मैं आप लोगों को किस तरह दूँ। ये जो मैं आकर आप लोगों के साथ सेशन में गप्पे लगा लेती हूँ, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एसेट है। तो अगर मैं किसी को जो है पर्सनली टाइम नहीं देती या किसी से बात नहीं करती, तो भाई मेरी भी मजबूरी अंडरस्टैंड करें। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, जिस तरह आपके पास 9 to 5 का टाइम होता है वर्किंग का, मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है। ये अलग बात है, मैं उस टाइम को डबल ट्रिपल करने की कोशिश करती हूँ कि और प्रोडक्टिव तरीके से जो है मैं अपना काम कर सकूँ। सो ये है कि प्लीज़ जो है इसको पर्सनलाइजेशन में ना ले लिया करें, नाराज़ ना हुआ करें, और गुस्सा भी ना किया करें कि टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं मैसेजेस का जवाब भी दे देती हूँ और बात भी कर लेती हूँ, पर ऐसी नाराज़गियाँ नहीं करते, ठीक है। मुंह नहीं बनाते, मुंह नहीं भसूर के बैठ जाते कि भी बात नहीं की, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और जो चीज़ आपने करनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये सारी टाइम मैनेजमेंट में आती हैं। सो द मोर यू प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा, स्टार्ट में जो है चीज़ें नहीं हैंडल होंगी, इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट सुपरफिशियल बीइंग, यू आर नॉट कंप्यूटर, आपसे गलतियाँ होंगी। वो कहते हैं ना, टू अर्र इज़ ह्यूमन, फॉरगिव इज़ डिवाइन। सो भाई हम ख़ता के पुतले हैं, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, एंड इट इज़ गुड, क्योंकि व्हेन वी मेक मिस्टेक्स वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इफ़ वी डू नॉट मेक मिस्टेक्स वी वुड नेवर लर्न कि भाई लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, या किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना था, या किस चीज़ को कम टाइम देना था। सो वी नीड टू मेक दोज मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स हमें सिखाती हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू बी एबल टू फेस लाइफ इन इट्स ट्रू फॉर्म, या उसकी जो है जो भी जो है पेन्स हैं या पेन्स हैं, प्लेजर्स हैं, हम उसको जो है किस तरीके से जो है फेस करेंगे। सो वी नीड टू मेक मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, और फिर इसी तरीके से हम लाइफ को सही तरीके से भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। ओके जी, अलीशा आप मुझे क्या कह रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट इलेक्ट्रिसिटी or gas meter disconnected, that means time is very important in life and in the world. Time is important in our life when we go any country taking flight, so we are going to, yes, to go before 4 and 3 hours, so that mean time is very important. Yes, you are very much right. और आपने जो examples दी कि वाकई में
जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फ़्लाइट डिपार्चर के टाइम होते हैं, आपने 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। अब उस 2-3 घंटे में आपके जो है यानी लॉजिंग भी होती है, उन्होंने आपका जो है सामान भी चेक करना होता है, और जो उनके लवाजमात होते हैं वो भी करने होते हैं, और फिर उसके बाद आप सज के जो है ना बैठ जाते हैं लाउंज में, जब तक प्लेन आता नहीं है, लगता नहीं है, फिर अंदर जाना एक वो अलग स्यापा होता है। सो वो बहुत चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज़ ट्रू कि टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप जो है 3-4 घंटे पहले अपनी नींद सेक्रीफाइस करके नहीं उठेंगे, पहुँचेंगे नहीं, तो आपकी फ़्लाइट तो निकल जाएगी और किसी ने आपको रिएम्बर्स भी नहीं करना। सो जो पैसे गए सो गए, ज़ाया हो गए। अच्छा, फिर इसमें जो है ना मज़ीद जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू स्टे ऑर्गेनाइज। टाइम मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, मिसमैनेज होंगे, तो आपकी चीज़ें जो है ना बस दरम भरम हो जाएंगी और आपका पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम जो है ना ख़राब हो जाएगा। सो यू हैव टू ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज। और ये तो जो है यानी सिर्फ टाइम के हवाले से नहीं है, ये तो हर चीज़ में आता है। आप ये देखें कि आप जिस डेस्क पे बैठे होते हैं, अगर उस पर भी जो है कहीं पर ग्लास पड़ा हुआ है, कहीं पर टिशू पड़ा हुआ है, कहीं पर हेडफोन्स पड़े हैं, कहीं पर और तारे पड़ी हैं, चार्जर्स पड़े हैं, सो इट इज़ मोर ऑफ अ मेसी इन्वायरमेंट। सो आपका जो डेस्क है, इफ़ यू लाइक इट टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, एक हद तक ऑर्गेनाइज हो, जो सारे तारे वगैरह हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं, उसको साइड पे कर दें, इफ़ यू लाइक टू स्टे दैट वे। बट देन अगेन यू हैव टू मैनेज इट सम वे। जब आप रात को रिटायर करें तो अपना डेस्क क्लियर करके जो है मूव करें, बजाय कि अगर इर्द गिर्द चीज़ें फैली होंगी तो फिर हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाए, किसी पे पानी गिर जाए, किसी पे कोई और लिक्विड गिर जाए, या आपकी जो है चीज़ें जो है इधर उधर हो जाए। लाइक जिस वक्त घर में सफाई होती है, सो मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी, जिस तरह फ्लैश ड्राइव है या आपके जो एक्स्ट्रा ड्राइव्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मिसप्लेस हो जाती हैं। सो उसके लिए बेस्ट ये है कि जिस भी डेस्क पे काम करें उसके कोई ड्रॉज हों या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आप ना चीज़ें रख सकें। अच्छा जी, अब्दुल सलाम, व्हाट आर यू सेइंग? माय कनेक्शन, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, खूबसूरत गुफ्तगू, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर जो है अगेन टाइम के हवाले से जो है ना एक और जो चीज़ आ जाती है, कंटिन्यूस लर्निंग। ना कंटिन्यूस लर्निंग इज समथिंग, जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने से लेकर जब तक हम कब्र में नहीं जाते ना, हम लर्न ही कर रहे हैं। सो आप अपने आप को जो है ना स्टूडेंट के मोड में रखें। नेवर थिंक यू आर प्रोफेशनल या आपको बहुत ज़्यादा आ गया है, इवन दो यू आर अ प्रोफेशनल, बट स्टिल नेवर से कि भी आई एम अ प्रोफेशनल, क्योंकि जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना आई एम अ प्रोफेशनल, तो आपकी वो जो लर्निंग कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। देन यू वोंट वांट टू ग्रो। एंड आई थिंक जो बंदा या जो बंदी हमेशा इस प्रोसेस में रहते हैं कि दे आर लर्निंग ईच डे, अनलर्निंग एंड लर्निंग, इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अनलर्न आप वो चीज़ें करते हैं जो कि आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है ना आपके अंदर जो है ना ठूस ठूस के डाली जाती है कि भाई ये चीज़ सही है तो आपने इस पे अमल करना है। अनलर्न आप जब नई चीज़ें सीखते हो तो वो चीज़ें जो कि ज़बरदस्ती आपके माइंड में डाली जाती हैं कि भाई आपने जो है यही चीज़ फॉलो करनी है, वो आपको उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहे होते जिस तरीके से एक ग्रोथ माइंडसेट को ज़रूरत होती है। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप अनलर्न करते हैं ताकि आप नई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और उनको आगे लेकर चल सकें। और वो जो नई चीज़ें होती हैं जो आप लर्न कर रहे होते हैं, दोज आर द थिंग्स विच यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल एक्सपीरियंसेस। जो अब मैं कहूँगी, अब जो हमारे करिकुलम्स हैं जो कि पहले से चलते हुए आ रहे हैं, दोज आर नॉट द वंस जिनको लेकर आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर सकती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करने के लिए यू नीड पीपल जो कि अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हैं, जो कि अपने लाइफ एसेंसेस आपको बताती हैं, या जिनके जो है बात में कोई ऐसा दम होता है जिनको सुनकर आप कहते हैं कि यस, ये जो बात कर रही हैं ये लॉजिकल बात है और वाकई ज़िंदगी में ऐसा होता है। सो आपको जो है और हमें इनफैक्ट वो वाले करिकुलम्स चाहिए जो कि प्रैक्टिकल बेस पे हों, ना कि जो है जो सदियों पुराना जो है, सदियों पुराना इन द सेंस कि वो करिकुलम जो कि कभी रिवाइज नहीं हुआ और उसी को जो है मज़ीद घचोले मार के इधर से उठा उधर से उठा प्लेजराइज करके जो है ना पेश किया जा रहा है। तो वो आपके काम नहीं आना। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग
से ही आप लर्न करते हैं कि भाई इस वक्त जो है दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही हैं, कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, और कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड कीप योर सेल्फ इन दैट स्टूडेंट मोड. डोंट एवन ट्राई टू थिंक कि भाई मैं बहुत ही कोई जो है ना अफलातून बन गया हूँ और मैं फ़लस्तू बन गया हूँ, अरस्तू सॉरी बन गया हूँ, एरिस्टोटल. तो ये यू कीप ऑन लर्निंग एंड डू व्हाट यू आर डूइंग. एंड देन अगेन इसमें टाइम में अगेन एक चीज़ आ जाती है, यू नीड टू टेक ब्रेक्स. क्योंकि देखें वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, वी ऑल नीड रेस्ट. सो अगर हम रेस्ट नहीं देंगे और अगर हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर सड़ जाएगा. क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर है. इवन मशीन भी बहुत ज़्यादा टाइम पे जो है काम करती रहे. आप अगर बेकिंग कर रहे हैं और बेकिंग की जो ब्लेंडर है वो आप उसको चला रहे हैं, फुल स्पीड पे चला रहे हैं और आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा, वो मशीन है ना वो भी सड़ जाएगी. सो इसी तरीके से जो ह्यूमन फॉर्म है, जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, वो भी विद टाइम जो है जब बहुत ज़्यादा आप उसको जो है रगड़ेंगे तो वो सड़ जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा. और बर्न आउट जब होगा तो फिर उसको दोबारा से रिज्यूम करने के लिए टाइम लगेगा. सो अपने आप को उस नौबत तक ही ना पहुँचाएँ कि आप बर्न आउट हो जाएँ. सो इसलिए बेहतर है कि हमेशा बीच में ब्रेक्स लें. अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ब्रेक लें, अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक लें. सो ब्रेकआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग ब्रेक, सॉरी नॉट ब्रेकआउट, टेकिंग ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा देन जो है अगेन आपने जो है ना यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ये जो है ना नाशुक्री की जो आदत है, ये इसकी तो ना लत पड़ी हुई है लोगों का हर चीज़ में. भाई आप इस चीज़ पे क्यों नहीं खुश होते कि भाई अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने आपको जो है इतनी सेंसेस दी हैं कि आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करें. अल्लाह मियाँ ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ने आपको जो है देखें सेंस ऑफ टेस्ट दी है, सेंस ऑफ स्मेल दी है, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है. यानी अगर आप जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कि भाई आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बनस्बत कि आप बैठ के इस पे क्रिप करते रहें कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाने के पास ये है, फलाने के पास ये है. सो डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, थिंक अबाउट द थिंग्स के जो अल्लाह ने आपको दिया एंड ट्राई टू बी हैप्पी अबाउट दोज थिंग्स. सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी एंड यू विल फील वेरी लाइट. यू वॉन्ट एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट थिंक कि भाई दिन में किसने कौन से कपड़े पहने थे, किसने कौन सा मेकअप लगाया था, किसने कौन से जो है ब्रांड का फ़ोन पकड़ा हुआ था. यू आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट. अगर एट द एंड ऑफ द डे आपके जो है टेबल पे रोटी है, आपके सर के ऊपर छत है, पाँव के नीचे ज़मीन है, तो यू आर द मोस्ट वेल्दिएस्ट पर्सन एंड प्लस यू हैव अ फैमिली हु इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू. सो यू आर अ वेरी healthy person and you have to be thankful for these blessings. So ये चीज़ें जो है ना सोचें, don't be नाशुक्रा, try to do शुक्र of Allah. अच्छा जी, रईस नसीबुल्ला, वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन का क्या हाल है, ठीक हो? यस, आपकी बहन ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच. अलीशा, यू आर सेइंग आवर होल लाइफ नीड टू लर्न cradle to grave. Yes, you are right. From birth till grave we are in the process of learning and that continues. So उसको जो है ना कंटिन्यूस ही रखना चाहिए rather than उसको जो है ना साइड लाइन कर दें. अच्छा देन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड के बाद आ जाता है वी नीड टू कनेक्ट विद अदर्स. अच्छा एंड वी नीड टू कनेक्ट विद द पीपल हु हैव पॉजिटिव माइंडसेट लाइक आर्स एंड दे आर वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो आपकी एनर्जीज बूस्ट करते हैं रादर देन कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो ये देख कर के भाई अच्छा आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो आप जो है ना पुल डाउन करने की कोशिश करें या बैक फाइटिंग करें, बैक स्टैपिंग करें, या जो है आपको कहेंगे नहीं भी ये जो आप कर रहे हैं तो सारा फजूल है, या आपको इस तरीके से डिस्करेज करें कि भाई ये क्या आप फजूल काम करें, कोई आपको इसके पैसे मिलते हैं. सो नेवर connect with such people. Always connect with people who bring out the positivity in you, who bring out the best in you. So ऐसे जो लोग होंगे those are going to be assets of your life. तो चाहे वो आपको अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में मिलें या चाहे वो आपको अपने पर्सनल इन्वायरमेंट में मिलें. So always focus on connecting with such people. Nadir Sian, is it Sian or Sian? Sian, I guess. Oh, and it's
quite a long time since you have logged into my live session. I hope you're fine and your job is going fine. Are you still in Australia or you're back? And Badr Javed, thank you so much for joining and watching, and you have joined my session for the first time. Nadir, when I go offline, I need to ask certain things from you. Okay. Alicia, you are saying कि yes, you're saying you have beautiful dress color, so then you say thanks Allah. Yes, देखें, आप जो कपड़े पहनते हैं आपको उनके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. आप जो हर रोज़ उठते हैं, उठते साथ तो सबसे पहले सुबह को आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं. एंड यू थैंक हिम कि भाई उन्होंने अल्लाह ने आपको एक और दिन दिया कि भाई यू आर एबल टू गेट अप. क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु माइट स्लीप एट नाइट बट दे माइट नॉट गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो ये जो ग्रैटिट्यूड है ये आपको करना है और बार बार करना है. अगर आप जो है नहीं करेंगे तो ना शुक्र बन के जो है दुनिया से चले जाएंगे, तो आगे जाकर क्या अल्लाह को जो है कहेंगे कि जी मैंने पूरी ज़िंदगी ना शुक्रपन में गुजार दी, कि आपने जो इतनी नेमतें दी थी मैंने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया. तो यू हैव टू से शुक्र टू एवरीथिंग यू हैव. इवन इफ़ यू आर वेयरिंग अ गुड ड्रेस यू हैव टू से अल्लाह का शुक्र है कि ही हैज़ गिवन दिस टू यू. मोहम्मद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, सो कनेक्शन विद अदर्स की मैंने आपको बता दी कि कनेक्ट विद द राइटफुल पीपल, कनेक्ट विद द पीपल हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, हु मोटिवेट यू, हु टेल यू गुड थिंग्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, रादर देन कि वो आपको जो है बैक स्टेपिंग करें या पुल डाउन करें या आपको जो है नेगेटिविटी जो है आपके माइंड में डालने की कोशिश करें. खुद तो वो नेगेटिव हों और आपको भी साथ में नेगेटिव बना दें. अच्छा, देन जो मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी, यू नीड टू फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस. क्योंकि देखें क्या कहते हैं, सेहत है तो जहान है. अगर सेहत ही नहीं होगी तो जहान भी नहीं होगा. क्योंकि अगर सेहत आपकी ख़राब होगी तो ऑल टाइम यू विल बी वरीड, यू विल बी डिप्रेस, यू विल बी रशिंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स. कभी एक मेडिसिन खा रहे हैं, कभी दूसरी मेडिसिन खा रहे हैं. तो अगेन ये भी ग्रैटिट्यूड में आता है कि भाई अल्लाह ने जो सेहत दी है उसका शुक्र अदा करें एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. कि जो सेहत है ना वो भी आपके पास अमानत है अल्लाह की. अगर आप सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, जंक फूड खाएंगे या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप अमानत में ख़यानत करेंगे. सो अमानत में ख़यानत तो नहीं करनी ना. तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जितना ज़्यादा आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आप लोगों को इन द पॉजिटिव वे इम्पैक्ट कर सकते हैं. और पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करने के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से सेशंस देकर करें, चाहे 1-to-1 कन्वर्सेशन करें, या चाहे जो है उनको कोई दानाई की बात बताएं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन हेल्थ. और इन द एंड जो मैं आपसे बात करूँगी ना, दैट इज़ यू नीड टू रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू. जो पूरे दिन आप करते हैं उस सब को जो है ना रात सोने से पहले रिफ्लेक्ट करें. गोल्स तो बनाते ही हैं पर साथ में रिफ्लेक्ट भी करें कि पूरे दिन मैंने क्या चीज़ ठीक की, क्या चीज़ गलत की, उसमें कौन सी चीज़ थी जो मैंने लोगों की भलाई के लिए की, कौन सी चीज़ मैंने अपनी भलाई के लिए की, और मैं किस तरीके से, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ फॉर फ्यूचर डेज टू कम. So this is how we reflect and this is how we review. And then again you can always ask people how can I improve. जिस तरीके से मैं आपसे continuously पूछती हूँ कि if you have suggestions for me या if you want me to address some other topics in my live sessions तो do let me know so I can address those topics. और अगर आप लोगों के पास जो है कोई stories हैं which you want me to share here live, so you can always talk about those stories as well. Acha, Alicia, you are saying health is wealth, then living best way in the world. Yes, if you focus on your health, then that is wealth. Or the best way to live in this world is to adopt the practices which have been, laid down in our core of life, which we need to follow, and we need to practice by looking at the examples of the models we have in front of us. और अगर आज का टॉपिक मेरा क्लियर था तो शो मी वाया योर इमोजीज हाउ क्लियर इट वाज टू यू. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय आईज टूवर्ड्स फेसबुक सो आई कैन लुक कि भाई आपको जो है अगर आज का टॉपिक समझ आ गया है तो यू कैन शो इट थ्रू योर इमोजीज. चाहे वो जो है थम्स अप हों, चाहे वो जो है आपकी स्माइलीज हों,
और अगर आपको नहीं समझ आया टॉपिक तो यू कैन ऑलवेज सेंड दोज रोने धोने वाले इमोजीज, एंड देन यू कैन ऑल्सो सेंड योर कमेंट्स इन द इनबॉक्स, सो आई ऑल्सो नो कि भाई आज का टॉपिक आपको समझ नहीं आया. एंड देन अगेन इफ़ यू वांट मी कि मैं इस किस्म का जो कंटेंट है वो बनाती रहूँ और इस तरह के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करती रहूँ, तो आई वुड वांट यू टू subscribe to my YouTube channel and like my videos, share those videos and subscribe to it as well, जितना आप कर सकते हैं. So that is what I would like to request. And अगर किसी का जो है कोई टॉपिक नहीं है, I can see someone at the top of my screen. So अलीशा, आप लाइव कैमरा पे आना चाहेंगे? आपको मैं जो इनवाइट करूं या मैं जो हूँ सेशन वाइंड अप कर दूं? Okay, so I'll just check if I can bring you live on camera. Okay, Alifa, you are saying yes, bundle of thanks with your suggestion of our live. You're most welcome. Okay, so Hello, now you're Assalamualaikum. live. Walaikum assalam. Yes, hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. अलीशा, कैसे हैं Yes, आप? how are you? Alhamdulillah, fine. Yes, I जी understand your whole topic, and we can discuss some some talks about in future. Like time is very important in our future because we can gain हम्म this time for the success. Am I right? जी जैसे कि मैंने अभी कहा आपको एक मैसेज में भी कि आपने भी पहले उसकी निशानदेही की कि इंसान जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर कब्र में उतरने तक वो सीखता रहता है. जी तो जी वो बिल्कुल. सीखना उस टाइम के अंदर सीखना चाहिए जो कि हमारे पास टाइम है. सम टाइम हमारा टाइम गुजर हम्म जाएगा, कोई काम रह जाएगा तो फिर अफसोस के बिना और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अफसोस रह जाएगा. तो इससे बेटर है कि हमें उस वक्त में उस काम को सीखना चाहिए, करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर हम्म उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, तब जाके हम. हेलो. बिल्कुल. और आप तो मुसल हाँ जी, आप तो मुसलसल सीखने के प्रोसेस में होते हैं. हेलो जी, आई मुझे थिंक आवाज आ रही है डिस्कनेक्ट. आपकी. अच्छा. नहीं, हेलो. मुझे आवाज आ रही थी आपकी. हेलो. आई थिंक वीक्स मिल गए. अच्छा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. अच्छा, सो दिस वाज अलीशा और वो बात कर रहे थे कि लाइक वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग और फ्रॉम बर्थ टिल ग्रेव वी कीप ऑन लर्निंग. सो वी हैव दिस दिस मेंटल कैपेसिटी जो कि अल्लाह मियां ने हमें दी है, एंड वी नीड टू यूटिलाइज दिस मेंटल कैपेसिटी एंड वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग. क्योंकि जितना हम लर्न करेंगे उससे हम सीखेंगे, उससे हम बढ़ेंगे, हमारा ग्रोथ भी उससे बढ़ेगी, सक्सेस की तरफ भी हम जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जाएंगे. एंड देन जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप में जो है रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि भाई मेरे पास ये टाइम था तो मैंने उस टाइम में जो है सीखा नहीं या मैंने इस चीज पे फोकस नहीं किया. क्योंकि देखें, कुछ चीजें होती हैं जो कि आप जो है प्रोफेशनली करते हैं सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन कुछ चीजें होती हैं जो कि आप जो है अपने लिए करते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यू नीड टू लर्न बोथ वेज, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी. और जो आप पर्सनली लर्न कर रहे होंगे वो आप देखेंगे कि आप उससे जो है किस तरह अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड है या चाहे वो आपके दोस्तों से रिलेटेड है या वो आपके जो है ना आपके सर्कल से रिलेटेड है. तो आप जो है हर तरीके से जो है ना अच्छाई की तरफ ही लोगों को लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि खुद आप जो है अच्छा कर रहे हैं, खुद आप लर्निंग कर रहे हैं और फिर उस लर्निंग को आप इम्पार्ट कर रहे हैं. वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप नॉलेज बांटते हैं उतना नॉलेज बढ़ता है. सो लर्निंग का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो आप सीखेंगे फिर इन द लॉन्ग रन आप उसको इम्पार्ट करेंगे और वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपकी उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी
और आप उस तरीके से जो है लोगों की जिंदगियां भी जो है आसान बनाएं। सो दैट वुड बी ऑल। इंशाल्लाह कल मुलाकात करूंगी आपसे एक नए सेशन में। एंड आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माय स्क्रीन, डोंट नो, ओके वो ऑफलाइन चले गए। सो इन द मीन टाइम इफ देयर इज एनी टॉपिक व्हिच यू वांट मी टू डिस्कस, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगी। एंड यस, आई एम सॉरी, कल जो है आई वुड नॉट बी हैविंग अ लाइव सेशन, तो इंशाल्लाह मंडे को रिज्यूम करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।